So hi everyone, welcome back to my YouTube channel Voice of Code and today we are going to discuss about basics of programming. So जावा में खासकर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं सिंस जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है दैट विल बी जावा एंड सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी फंक्शंस। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शंस एक्चुअली जो इनको हम मेथड्स भी बोलते हैं ये वी कैन से रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं और इंस्ट्रक्शंस जिनको हम एक्चुअली बार बार कॉल कर सकते हैं और ये हेल्प हमें करते हैं एक्चुअली कोड रियूजेबिलिटी में मॉड्यूलैरिटी में ताकि आपका कोड मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे और रीडेबिलिटी उस कोड की बेटर रहे। तो रियल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लेट्स सी इट। तो गाइज आज हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं दैट विल बी अ बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारे पास ओप्स का कंप्लीट पैटर्न है। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू इट। सो सबसे पहले हमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, फर्स्ट नंबर जिसके करस्पॉन्डिंग हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो वी कैन जस्ट हैव अ सिंपल कंसोल दैट विल से प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। एंड जो नई चीज है आज फ्रॉम टुडे इटसेल्फ दैट विल बी दैट हम एक्सटर्नल कोई भी टर्मिनल यूज नहीं करेंगे। सो विल बी एक्चुअली यूजिंग इनबिल्ट टर्मिनल in VS Code itself. And the way to open that terminal is we can just press Control and the backtick key, which is available in the keyboard, and it will just show the terminal. Alternatively, we can also use the terminal window here, and it says New Terminal. So ये भी आपका टर्मिनल ओपन कर देगा। And we are actually in the Java tutorials directory, तो यहाँ तक हमें पहुँचना है। And right now we can just say Java C hello world.java. That's it. So program get compiled. और ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों ने अपना जावा का जो पाथ वेरिएबल है और जो होम एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो आपने सेट किया होगा। तभी आपकी जो जावा सी कमांड है या जावा कमांड है वो आपकी हर टर्मिनल पे अवेलेबल हो पाएगी। अदरवाइज यू हैव टू गो टू द कंप्लीट बिन डायरेक्टरी जहां पर जेडीके इंस्टॉल्ड है। So that is something else, that is the installation part of the JDK itself. Now user will enter the first number. उस नंबर को कैप्चर करने के लिए what we need to do, we have a scanner class in the java.util package. So we will import the package or the class from the package itself. एंड एक रेफरेंस वेरिएबल हम लोग लेंगे, सो दैट इज एससी एंड देन वी कैन से जावा स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। एंड जो स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर है दैट एक्चुअली टेक्स अ आर्गुमेंट एंड दैट इज system dot input. That's it. Now we have a scanner and we can actually get a variable from the user. So let's just say int first number equals to sc dot next int. So next int is something जो user अगर आपका integer number input करता है, so it will get stored in the first number variable. Then same instruction again, system dot out dot print line, enter the, or we can say, please enter the second number. Then we have the second number as int second number equal to sc dot next int. इसके अंदर का हमें ऑब्जेक्ट एक बार बनाना होता है, then we can reuse it for actually capturing the user input many times. And for example, right now we are actually performing the add operation, or we can just use system dot out dot print line performing add operation on the provided input. दैट मीन्स जो भी आपके यूजर ने इनपुट प्रोवाइड किया है उस पर हम एड ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एक वेरिएबल हम लोग लेंगे इंट रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दैट्स इट। एंड देन फाइनली वी विल जस्ट शो द रिजल्ट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन द रिजल्ट ऑफ द एड operation is string concatenation again and we will just type the result here, that's it. So let's just compile this program. So save करते हैं एक बार और compile करके देखते हैं that what is should be the output of this program. At last, we just need to close the scanner, but right now it is not mandatory, so we can just leave it. So let's compile this program, hello world.java, then just run this program. So right now, जो आपके पास this is the first print line statement. Please enter the first number. Now the scanner is actually waiting for the user input. कि user यहाँ पे कुछ भी input करेगा, and user जो भी input करता है, for example, I just input 45, and if I hit enter, then the code gets executed further और आपके पास जो second print line statement है वो सामने आएगी, that please enter the second number. Now it will actually wait for the user to provide the input. So we will actually provide 60 here. And based on this input, the result should be 105 since we have 60 and 45.
So this is the add operation actually which we have performed in the main function itself. And this is just a basic module of a calculator function using object-oriented programming. Now let's see. So this is the syntax of the function. एंड इसको हम सिग्नेचर भी बोलते हैं. सो दैट इज बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके अंदर जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो, इनपुट जो आप पास कर रहे हो उस फंक्शन के लिए, एंड देन फंक्शन बॉडी. So let's create a new function here that will actually serve the purpose of the add function. So we will just say it as add, और अभी के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं लेते हैं. तो अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज द एक्सेस मॉडिफायर, द पब्लिक कीवर्ड, देन वी हैव द रिटर्न टाइप, और अभी के लिए रिटर्न टाइप जो है वो आपका void है. Then we have the name of the function. So we can say function name, which is actually add, parenthesis, parameters. और तो अभी के लिए कोई parameters नहीं है यहाँ पे. And finally, inside curly braces, we have the function body. In the function body, actually, we can say like int result equals to 60 plus 45. That's it. And we can just return the result. तो कोई भी फंक्शन अगर कोई भी चीज रिटर्न कर रहा है, उसको उस फंक्शन को बताना पड़ेगा दैट जो भी चीज वो रिटर्न कर रहा है उसका टाइप क्या है, एंड वो ही रिटर्न टाइप होता है. सो वॉइड का मतलब होता है कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. अगर यहाँ पर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, उस फंक्शन को टाइप बताना पड़ेगा. सिंस रिजल्ट इज एक्चुअली इंटीजर, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होगा वो दैट शुड बी एन इंट. एंड नाउ इट गेट्स रिजॉल्व. तो हमने ऐड के लिए एक अलग फंक्शन बना दिया है यहाँ पे. एंड नाउ वी कैन जस्ट सिंपली कॉल दिस फंक्शन हेयर. तो द सम ऑफ 60 and 45 is, or we can say int result equals to add. So we are just actually calling add function here. And to call this function, we need to make it static. Reason for that being, I will just explain it later in the video. Right now, we are actually calling this function, और जो भी इस function से return आएगा वो हम result variable को assign कर रहे हैं. And finally, we are actually printing the result variable here in the println statement. And run this program. It says the sum of 60 and 45 is 105. तो ये आपके कंसोल थी जो यहाँ तक आई है, और रिजल्ट की वैल्यू इस फंक्शन ने एक्चुअली कैलकुलेट करके दी है. नाउ द ओनली इशू इज कि हमारे पास अभी लिमिटेशन इतनी है कि जो भी यूजर यहाँ पर यूजर अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करे वो एक्चुअली काम नहीं कर रही है. दैट मीन्स ऐड फंक्शन सिर्फ अभी कुछ स्टैटिक चीजों के लिए काम कर रहा है, दैट इज 60 एंड 45. तो अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो फिर काम करेगा जो आपके पास नए नंबर्स हैं, अदरवाइज हमें बार बार इस फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो लेट्स डू वन थिंग, इस फंक्शन को इस तरह से बिल्डअप करते हैं कि यूजर के इनपुट के हिसाब से ये काम करें. तो फॉर दैट हमें फंक्शन को इनपुट देने होते हैं, एंड उनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स. तो पैरामीटर्स किसी भी फंक्शन या मेथड के लिए कुछ इनपुट होते हैं, और उस इनपुट के बेसिस पे वो फंक्शन आगे प्रोसीड करता है. तो लेट जस्ट डू वन थिंग, मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर रखे हैं, और इनका रखने का जो सिंटेक्स है दैट इज सेम. डेटा टाइप, कि इनपुट किस टाइप का होगा, उसका नाम क्या होगा. देन अगेन द सेकेंड वन. तो दिस फंक्शन एक्चुअली हैव टू पैरामीटर्स. द फर्स्ट इज फर्स्ट नंबर, इसका टाइप इंट है, और सेकेंड नंबर का टाइप भी इंट है. नाउ वी कैन जस्ट डू वन थिंग, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं, और इसको बोलते हैं दैट रिजल्ट शुड बी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर. अब ये फंक्शन कंप्लीटली डायनामिक हो चुका है. दैट मीन्स यूजर जो भी यहाँ पे पास करेगा उसका समेशन होके रिटर्न कर देगा ये फंक्शन. नाउ ऐड फंक्शन विल शो एन एरर हेयर, क्योंकि अब इसके पास दो पैरामीटर हैं, वी कैन नॉट कॉल इट डायरेक्टली. हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे. तो फॉर दैट वी विल एक्चुअली आस्क द यूजर दैट व्हाट इज द फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट हम यूजर को एक स्टेटमेंट देंगे सो दैट यूजर को पता लगे कि पहला नंबर एंटर करना है. एंड देन वी विल एक्चुअली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, जो कि यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करती है, एंड इट टेक्स एन आर्ग्यूमेंट ऑफ सिस्टम डॉट एन. नाउ वी कैन जस्ट से फर्स्ट नंबर इंट फर्स्ट नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. देन अगेन जैसे यूजर फर्स्ट नंबर डाल देगा, वी विल एक्चुअली प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द यूजर दैट प्लीज एंटर द सेकेंड नंबर. एंड वी विल एक्चुअली कैप्चर जो यूजर ने इनपुट किया है उसको हम एक इंट वेरिएबल में कैप्चर करेंगे. का नाम होगा सेकंड नंबर sc डॉट नेक्स्ट इंट. तो नेक्स्ट इंट का मतलब है दैट जो इनपुट होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा. अब हमारे पास फर्स्ट नंबर भी है, सेकंड नंबर भी है,
और ये जो फर्स्ट नंबर वेरिएबल यहाँ पर है और ये जो इसके अंदर है, ये दोनों डिफरेंट है। तो कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, अभी ये मेन फंक्शन है, इसका स्कोप एक्चुअली यहां से लेके सिर्फ यहां तक है। इसके अंदर का जो फर्स्ट नंबर है, इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है, बाहर इसको कोई भी नहीं जानता है। सेम गोस फॉर दिस, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन तक है। तो वी कैन एक्चुअली डिक्लेयर सेम नाम के वेरिएबल विद इन डिफरेंट फंक्शंस। नाउ दो हमारे पास नंबर आ चुके हैं इन दोनों वेरिएबल में जो यूजर एंटर करेगा। वी कैन एक्चुअली पास दिस नंबर्स टू द ऐड फंक्शन, क्योंकि उसको दो नंबर चाहिए। दैट्स इट। एंड वी कैन एक्चुअली से जो आपका रिजल्ट होगा, सो नाउ वी कैन से द रिजल्ट और द एडिशन ऑफ, लेट्स जस्ट रिमूव इट, फर्स्ट नंबर, then again string interpolation, and second number, again this is result. That's it. Now let just compile this program and run it. So it gets compiled, we can actually run it. It says enter the first number, तो पहली लाइन आपकी ये एग्जीक्यूट हुई एज पर द प्रीवियस डेमोन्स्ट्रेशन। देन स्कैनर विल वेट फॉर द यूजर, तो यूजर जैसे ही कुछ एंटर करेगा, स्कैनर विल वेट फॉर यूजर टू हिट द एंटर बटन। जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा, आपका कोड आगे एग्जीक्यूट होगा, एंटर द सेकंड नंबर, और फिर स्कैनर आपका वेट कर रहा है ताकि आप सेकंड नंबर एंटर करो यहाँ पे। तो मैंने फिर यहाँ पे इनपुट किया 56। तो जैसे ही मैं 56 इनपुट करूंगा, जो वैल्यू होगी वो सेकंड नंबर वेरिएबल पे आ जाएगी। एंड फिर हम कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को, और पास कर रहे हैं 34 एंड 56। एंड ऐड फंक्शन क्या कर रहा है इंटरनली, इट इज एक्चुअली एडिंग बोथ द नंबर्स जो आपने पास किए हैं, एंड देन इट इज एक्चुअली रिटर्निंग द रिजल्ट। और रिजल्ट हम असाइन कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल में, एंड वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग द रिजल्ट हेयर। तो एज सुन एज आई विल हिट द एंटर, आपका जो भी एडिशन है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज इट। वी कैन एक्चुअली यूज द ऐड फंक्शन more than once, twice, thrice. We can actually use it more than any time, like whenever you want to use it. So मुझे बस दो नंबर यहाँ पे पास करने हैं, that's it। 0,0, we can like do it anything। तो अभी आपके पास ये जो कोड है, दिस कोड, ये इंस्ट्रक्शन आपको बार बार नहीं लिखना है, इसलिए आपने एक फंक्शन बना दिया है, रियूजेबल फंक्शन, जहां पर आप डायनामिक वैल्यूज को पास करके इस फंक्शन से कुछ जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उनको एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो दिस इज द रीजन वाई वी एक्चुअली यूज फंक्शन इन अ कोड, और इनकी क्या हमें जरूरत पड़ती है अपने जब हम डेवलपमेंट करते हैं। तो कोड को एक तो ये एक सही जगह पे रखते हैं, प्लस आपका बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, एंड सेकेंडली कोड रियूजेबिलिटी ज्यादा बेटर तरीके से होती है। तो गाइस द नेक्स्ट टॉपिक इज लूप्स, और फंक्शंस के साथ साथ जो प्रोग्रामिंग का बेसिक है दैट इज एक्चुअली लूप। तो लूप्स भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब आप डेवलपमेंट करते हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसका बेसिक जो की वी कैन से टूल जो होता है दैट इज एक्चुअली लूप। और लूप का जो पर्पस होता है, द डेफिनेशन इट सेज कि आप कोई भी ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड, दैट मीन्स एक ग्रुप ऑफ कोड और लाइन जो होते हैं, उनको आप बार बार अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो जब तक कोई कंडीशन मेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद ये बंद हो जाए, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, कोड आपका रिडंडेंट नहीं होता है, दैट मीन्स रिपीटेटिव कोड नहीं होगा, और कोई भी ऐसे टास्क जो बार बार आने वाले हैं उनको आप ऑटोमेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो लेट्स सी अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस। और पहले इससे पहले टाइप ऑफ लूप्स देख लेते हैं इन जावा। तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ लूप्स इन जावा, और बेसिक प्रोग्रामिंग में भी थ्री टाइप के लूप्स ही होते हैं। तो इनका जो सिंटेक्स है लूप का, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है। इट इज नॉट अबाउट जावा ओनली, इट इज अबाउट ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो द फर्स्ट थिंग इज फॉर लूप, सेकंड थिंग इज व्हाइल लूप, एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव द फिक्स्ड आइटरेशन, जब हमें पता है कि हमें हमारा कोड कितनी बार बार चलाना है। तो कोई भी, लेट्स सपोज सिंगल लाइन ऑफ कोड है, मुझे वो 5 बार चलाना है, आई विल बी यूजिंग फॉर लूप। अगर कोई ऐसा कोड है जो मुझे नहीं पता है मुझे कितनी बार चलाना है, बस मुझे कंडीशन पता है, उसके लिए मैं यूज करूंगा व्हाइल लूप। और कोई ऐसा कोड है जहां पर मुझे अगेन सेम है कि मुझे नहीं पता कब तक चलाना है, बट मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक बार तो चले, फॉर दैट आई विल बी यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड थ्री ऑफ द लूप्स एक्चुअली हियर। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, देन व्हाइल लूप, एंड देन डू व्हाइल लूप। तो फॉर लूप में आपको इनिशियलाइजेशन देना होता है पहले,
कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, किस कंडीशन पे आके ये लूप खत्म होगा, टर्मिनेट भी होगा ये लूप, और हर आइट्रेशन पे मतलब जितनी बार लूप आपका दोबारा चलेगा उतनी बार उस लूप की अपडेशन क्या होगी। देन वाइल लूप में सिर्फ आपको कंडीशन देनी होती है और बॉडी देनी होती है, दैट्स इट। एंड डू वाइल लूप में पहले बॉडी आती है देन कंडीशन आती है, सो दैट वो बॉडी जो है वो आपकी एक बार एग्जीक्यूट हो जाए। तो गाइज डेफिनेशन हमने देख ली है, इनके सिंटैक्स हमने देख लिए। तो लेट्स जंप इनटू द प्रैक्टिकल कोडिंग और देखते हैं हाउ वी कैन implement each one of them. तो स्टार्टिंग विद द फॉर लूप। तो दिस इज आवर प्रीवियस कैलकुलेटर फंक्शन बेसिकली, या वी कैन से कैलकुलेटर के लिए हमने कोड लिखा था जिसमें हम सिर्फ ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। नाउ लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो जहां पर अभी तो क्या है, इसमें हम यूजर से फर्स्ट नंबर इनपुट कराते हैं, देन वी एक्चुअली आस्क द यूजर टू एंटर द सेकंड नंबर, और उसके बाद हम ऐड फंक्शन को कॉल करके वो फर्स्ट और सेकंड नंबर को पास कर देते हैं, एंड ऐड फंक्शन विल रिटर्न अस द रिजल्ट। नाउ लेट अस कंसिडर अ सिनेरियो जहां पर हमें ये एक्चुअली कोड दो बार चलाना है, दैट मीन्स हम यूजर को एक चॉइस दे रहे हैं कि वो दो बार ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। सो फॉर दैट हमें क्या करना होगा, हमें इस कोड को बार बार लिखना होगा, और वी कैन से दो बार। तो दिस इज द सेकंड टाइम जब यूजर को ये चीज दोबारा से हम पूछेंगे। अब इसमें थोड़ी सी इश्यूज आएंगे, वो इसलिए हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स जो ऑलरेडी इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर है, इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है, उनको आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो डिक्लेरेशन क्या होता है, थोड़ा सा वो देखते हैं हल्का सा। तो बेसिकली डिक्लेरेशन बोलते हैं जब आप किसी को फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करते हो, दैट मीन्स इंट आई इक्वल्स टू जीरो, दिस इज डिक्लेरेशन। जहां पर मैं आई की वैल्यू बताना ना बताना मेरे मेरे हाथ में है, बस मैं उसका टाइप जरूर बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा। तो दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, क्योंकि मैं आई की वैल्यू को डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ विद द वैल्यू ऑफ जीरो। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, दिस इज ओनली डिक्लेरेशन, दिस इज नॉट इनिशियलाइजेशन। और फिर फर्दर असाइनमेंट कह सकते हैं, या इनिशियलाइजेशन जब फर्स्ट टाइम आप वैल्यू देते हो, तो दिस इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड देन इसके बाद इसको असाइनमेंट बोलते हैं, दैट मीन्स अब इसकी वैल्यूज को हम फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं दोबारा से यहाँ पे इंट आई लिखूं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आई आपने दो बार डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं स्ट्रिंग आई लिखता हूँ, तो ये इशू क्या है कि आई ऑलरेडी एज इंटीजर डिक्लेयर है, आप उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में डिक्लेयर नहीं कर सकते। दोबारा डिक्लेयर तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, और टाइप अलग टाइप का कोई सेम नेम का वेरिएबल बना नहीं सकते हैं उसी ब्लॉक में। तो यहाँ पर हमारे पास सेम इशू है। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है एस सी। फर्स्ट नंबर हमने एक वेरिएबल बनाया था, और सेकंड नंबर हमने एक वेरिएबल बनाया था, डिक्लेयर भी किया था, प्लस उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी किया था विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। अब दोबारा से यही कर रहे हैं। सो इससे हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसका टाइप हटा देना है, एंड नाउ हम इसमें इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। सेम फॉर फर्स्ट नंबर। तो अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड सेम फॉर द रिजल्ट वेरिएबल। नाउ द ओनली इशू इज ओके, एस इज नॉट क्लोज्ड एट दिस लोकेशन। तो आई थिंक इसको लग रहा है हमने एस सी क्लोज नहीं किया, बट हमने एस सी क्लोज कर दिया है इन द बॉटम सेक्शन। दिस इज इट, राइट। सो एक बार उसको हटा के देखते हैं और दोबारा से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है, बट एक मेमोरी लीक है, सो वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, इसको सेव करते हैं, और एज वी आर एक्चुअली यूजिंग द टर्मिनल ऑफ द VS कोड इटसेल्फ, तो इसको यहीं पर कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल्ड, लेट्स रन द बाइट कोड। इट सेज एंटर द फर्स्ट नंबर एज यूजुअल, 20, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, अगेन इट सेज एंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमने सेम इंस्ट्रक्शन को दो बार लिखा था। तो लेट्स इंसर्ट सम न्यू नंबर दिस टाइम। तो 20 30, अभी हमने नया नंबर डाला है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास वेरिएबल था, और दिस वन, दिस फर्स्ट नंबर, इसकी प्रीवियस वैल्यू आपकी 10 जो यूजर ने एंटर करी थी, एंड सेम गोज फॉर द सेकंड नंबर 20। नाउ हमने सेकंड टाइम पे फर्स्ट नंबर को चेंज किया है, जो भी यूजर नया इनपुट कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू 10 और 20 ना होके जो नया मैंने एंटर किया है, दैट मीन्स 20 एंड 30 वो हो जाएगी, और रिजल्ट के पास नई वैल्यू आएगी, दैट इज 50, और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज एक्चुअली व्हेन वी वांट समथिंग टू गेट एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम। ठीक है, हम चाहते थे कि हम इस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करें, सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करें, यूजर को बार बार ऑप्शन मिले। अभी हमने सिर्फ दो बार ट्राई किया है। वी कैन हैव सच रिक्वायरमेंट कि ये कोड जो है वो 5 बार 10 बार चले। सो फॉर दैट
और ऐसे रिडंडेंट कोड के लिए अभी इशू क्या है, अगर मैं देखूं सेम इंस्ट्रक्शन सेट डुप्लीकेट हो रहे हैं, एक रिपीटेटिव कोड हमें दिख रहा है यहाँ पे, रीडेबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी इससे। आप जो कोड पढ़ने जाएगा या एज अ डेवलपर आपको भी बहुत इश्यूज होंगे। तो व्हाट वी कैन डू इन प्लेस ऑफ दिस, एक्चुअली यूजिंग लूप। तो लूप का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, वो हम देखते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एक्चुअली क्रिएटिंग फॉर लूप। फॉर का बहुत बेसिक सिंटेक्स है। ओके, अब मैं डिक्लेरेशन पे आता हूँ। तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एक इंटीजर नाम का वेरिएबल, उसका जिसका नाम है आई। इंटीजर टाइप का वेरिएबल, सॉरी, जिसका नाम है आई। एंड मैं असाइन कर रहा हूँ इसको, दैट मीन्स इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद द वैल्यू ऑफ जीरो। तो फर्स्ट टाइम इट विल बी जीरो। देन फॉर का जो सिंटेक्स है दैट इज इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, सॉरी कंडीशन, और देन अपडेशन। तो आई इज बेसिकली आइटरेटर है जो एक ट्रैक रखेगा कि आपका लूप इस टाइम पे कौन सी आइटरेशन पे चल रहा है, क्योंकि लूप का काम होता है मल्टीपल आइटरेशन पे चलना। तो आई विल ट्रैक दैट आइटरेशन, इसीलिए इसको हमने इंटीजर फॉर्म में लिया है। फिर इनिशियलाइज इसको हमने जीरो से कर दिया है। देन वी विल हैव अ कंडीशन, तो वी आर सेइंग आई इज लेस देन 5। दैट मीन्स कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक ये लूप चलेगा। जब तक ये ट्रू रहेगा, ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी, तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और हर आइटरेशन में क्या उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, वो लास्ट सेक्शन है हमारा आई प्लस प्लस। दैट मीन्स हर आइटरेशन के बाद जब जब आपके लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी एक बार, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। तो इसमें आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज काउंट होता है एज अ बॉडी ऑफ द लूप। तो एक बार लूप की बॉडी चलेगी, उसके बाद वो हो गई कंप्लीट एक आइटरेशन। दूसरी आइटरेशन में आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, दैट मीन्स आई की वैल्यू एक प्लस हो जाएगी। तो आई जैसे जीरो था स्टार्टिंग में, आई बाद में एक बन जाएगा, दो, तीन, चार, पांच। और ऐसे हर बार अपडेशन होने के बाद इस कंडीशन को चेक होगा कि वेदर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं। अगर हो रही है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज लूप विल ब्रेक। तो इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, इस लूप के अंदर रख लेते हैं, दिस लूप। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप इटसेल्फ, एंड हमने ये कोड यहाँ पे रख दिया। नाउ एससी को हम अंदर क्लोज नहीं कर सकते हैं, इसे हमें लूप से बाहर क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज। और इसको हमें इनिशियलाइज भी बाहर से करना पड़ेगा, ताकि लूप को ये पता रहे। क्योंकि अगर हम स्कैनर एससी को अंदर से यूज करते हैं या अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो फॉर भी अपने आप में एक ब्लॉक है, और ये एससी के लिए लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रीजन हमने इसको ब्लॉक से बाहर रखा है, ताकि ये ग्लोबली अवेलेबल रहे, काइंड ऑफ जैसे हमने जो पढ़े थे लोकल वेरिएबल फॉर्म में। तो अभी इसके अंदर अगर हम जैसे सेकंड नंबर हमने लिखा, दिस इज अ लोकल वेरिएबल फॉर द लूप। इसको मैं लूप के बाहर, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा सेकंड नंबर यूज करने का। दैट इज द रीजन हमने स्कैनर को बाहर किया है यहाँ से। Now we just need to say sc dot next in. Okay. तो ठीक है, ये वही वाला इशू है, एस इज नेवर क्लोज, एंड वी कैन लुक इनटू इट आफ्टर आफ्टर दिस। तो ये हमारी बॉडी है लूप लूप की। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहली चीज, इनिशियली जब लूप में एंटर होता है, तो पहले आई की वैल्यू सेट जो भी कर रखी है इस कंडीशन के अगेंस्ट चेक होती है और लूप में एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद दोबारा से कंट्रोल लूप के पास आता है दूसरी आइट्रेशन के लिए, और आपकी जो अपडेशन है वो चलती है। तो पहले जीरो था, आई की वैल्यू जीरो थी, कंडीशन चेक हुई जीरो लेस देन 5, विच इज ट्रू। लूप में एंटर होगा, बॉडी में एंटर होगा। तो हेयर कम्स द बॉडी। जब बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, दैट मीन्स लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन अगेन लूप पे कंट्रोल आएगा वापस। तो कंट्रोल गेट्स बैक टू लूप, और वहां पर आपका अपडेशन चलेगा। तो आई की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी, दैट मीन्स आई विल बी वन। देन दोबारा से आपकी कंडीशन चेक होगी, विच इज आई इज लेस देन 5, विच इज अगेन ट्रू। सिंस ये दोबारा ट्रू है, दोबारा बॉडी में जाएगा। और ऐसा तब तक चलेगा जब तक आपकी आई की वैल्यू जो है, दैट मीन्स, सॉरी, ये कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए। ये कंडीशन कब फॉल्स हो सकती है, सबसे मिनिमल लेवल पे, मतलब सबसे जल्दी, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो जब आई की वैल्यू 5 होगी, दैट मीन्स 5 इज लेस देन 5, एंड दिस इज फॉल्स। 5 इज एक्चुअली इक्वल टू 5, इट इज नॉट लेस देन 5। तो तब ये कंडीशन फॉल्स होगी और आपका जो है लूप से बाहर आ जाएगा। बट तब तक हमारा लूप जो है वो चल चुका होगा, जब आई की वैल्यू जीरो थी एक तब, आई की वैल्यू वन हुई तब, आई की वैल्यू टू हुई तब, थ्री एंड फोर। और अगर हम इसको काउंट करेंगे तो टोटल आपका जो बॉडी है ये 5 बार चलेगी इस सिनेरियो में, इस लूप के अकॉर्डिंग। तो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम और इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जावा सी hello world dot java compiled. Now the byte code is available and we can run it.
इट सेज एंटर द फर्स्ट नंबर, पहली बार लूप में एंटर हुआ है विद द वैल्यू जब आई की वैल्यू 0 है। पहला नंबर 10, सेकंड नंबर 2, लेट सपोज 12। अगेन इट सेज एंटर द फर्स्ट नंबर 44, 55, this is the sum. Third time it is asking enter the first number 67, 89. Fourth time it is asking 8 plus 9, and fifth time it is asking so 10 plus, sorry, जस्ट इशू कि मैंने इंटीजर की फॉर्म में वहां पे डैश डाल दिया, सो दैट इज द रीजन। नो वरीज, दोबारा रन कर सकते हैं। तो अभी मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। दूसरे टाइम हमारे पास लूप में कंट्रोल आया, देन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एंड दिस इज द फिफ्थ टाइम, लास्ट टाइम। तो दिस इज, और जैसे ही 5 बार एग्जीक्यूट हुआ आपका लूप वहां से खत्म हो गया। सिंस 5 बार होने के बाद आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, और 5 इज लेस देन 5, दैट इज फॉल्स, सो इट एक्चुअली गेट्स आउट फ्रॉम द लूप। तो ये बेनिफिट होता है हमारे पास लूप का, लूप यूज करने का। एक तो हमारा कोड रिडंडेंट नहीं है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, रीडेबिलिटी बहुत बेटर रहती है हमारी, और हम किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट को कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका प्रोग्राम लंबा नहीं होगा, लेंदी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस कैलकुलेटर से अलग। तो जो बेसिक आपके पास टेबल्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, तो किसी भी नंबर की जो टेबल होती है दैट इज एक्चुअली, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, अगर मैं बेसिक फॉर्मूला लिखूं, तो दिस इज दैट 2 into 1 इक्वल्स टू 2, देन 2 into 2 इक्वल्स टू 4, 2 into 2 इक्वल्स, सॉरी, 2 into 3 इक्वल्स टू 6, एंड सो ऑन। नाउ इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि एक तो हमें ये यूजर से पूछना है, सो रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक तरह से, जो हम क्रिएट करेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ लूप। तो रिक्वायरमेंट्स में देख लेता हूँ दैट नीड टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि उसको किस पर्टिकुलर नंबर की टेबल चाहिए, नंबर फॉर विच टेबल शुड बी प्रिंट और प्रिंटेड। ठीक है, पहली चीज हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सिंपली हैव अ वेरिएबल जो उसको होल्ड करेगा। सो वी कैन से इंट नंबर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। नाउ इस एस सी को क्लोज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इसको दोबारा से यूज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर हमारे पास यूजर से आ जाएगा, और इससे पहले हमें कंसोल लिख सकते हैं, ताकि यूजर को कंसोल पे दिखे कि उसे करना क्या है। तो दिस इज जस्ट अ मैसेज यूजर को गाइडेंस देने के लिए, प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट द टेबल। ठीक है, और नंबर की वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा एज अ नंबर, उसको हमने नंबर वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ना उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास बेसिक लॉजिक हमने इससे निकाल दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ना उसमें देखने वाली बात ये है, ये हमारे पास नंबर है जो हमें यूजर से मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हमारे पास ऑलरेडी है, हमें सिर्फ एक ऐसी चीज चाहिए जो हर बार एक इसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो। और उसके लिए सबसे बेटर क्या है, जो फॉर लूप के पास अपना आइटरेटर है, दैट इज आई, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो लेट्स यूज दैट, और दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि हमें पहली वैल्यू क्या चाहिए आएगी 1। ठीक है, तो हमने इसको 1 से स्टार्ट किया, और इसको हम चलाएंगे बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू नंबर तक, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या होता है, 2 into, सेकेंड, जैसे, सॉरी, 10 तक चलाएंगे, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करवानी है टेबल्स, दैट्स इट। तो जो भी नंबर होगा उसका हमें मल्टीप्लिकेशन 10 तक दिखाना है, उसकी जो भी टेबल्स हैं वो 10 तक दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 लिया है तो 9 into 10 90, सो वहां तक हमें कंप्लीट टेबल प्रिंट करानी है। एंड हर टाइम, हर बार में हम क्या चाहते हैं कि एक एक इंक्रीमेंट हो, ताकि 1 2 3 ऐसे करते सीक्वेंस में चलता रहे। दैट्स इट। नाउ लेट्स जस्ट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो वी एक्चुअली नीड टू यूज द string interpolation for that. So what we can do, एक स्पेस दिया है यहाँ पे, देन प्लस ऑपरेटर, जो नंबर है फर्स्ट थिंग वी नीड द 2। ठीक है, तो नंबर प्लस बीच में स्टार का सिंबल, ताकि यूजर को लगे कि दिस इज समथिंग मल्टीप्लीकेशन, दोनों तरफ स्पेस अगेन, देन आई जो हमारा आइटरेटर है, सो 2 into 1, देन अगेन स्ट्रिंग इक्वल्स टू, दोबारा प्लस, एंड यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगी दैट विल बी नंबर इनटू आई, जो रियल आपका मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, नंबर इनटू आई इक्वल्स टू नंबर इनटू आई, दिस इज इट। 2 into 1 इक्वल्स टू 2, दिस सॉर्ट ऑफ सेंस। अब ये क्या चलेगा बार बार, कि जैसे ही आपके पास लूप में एंट्री होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, एंड नंबर की वैल्यू जो भी यूजर इनपुट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम अज्यूमिंग यूजर इनपुट करता है 2, तो इट सेज नंबर इनटू आई,
टू इंटू वन इक्वल्स टू टू। देन आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट होगी नेक्स्ट आइटरेशन में, दोबारा से चलेगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। 10 तक भी चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, ये लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग अ टेबल फॉर अ पर्टिकुलर नंबर जो यूजर से हमें मिलेगा। तो फॉर दैट इस वाले कोड को एक बार कमेंट डाउन कर देते हैं सो दैट इट डजंट इम्पैक्ट द कंसोल। इसको हटा ही देते हैं एक बार। ऑलराइट, so let's run this program, java c hello world dot java. Please enter a number to print the table. I'm actually entering a complex number that is 119. That's it. So 119 to 38, 357, 476, and here we have actually printed the complete table for a particular number. तो दोबारा चला के किसी और नंबर के लिए हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10। सो दिस इज इट। हमने एक नंबर के लिए टेबल प्रिंट करवा दी है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और वो भी सिर्फ 3 लाइन के कोड में। तो फॉर लूप हमें तब यूज करना है व्हेन वी आर एक्चुअली अवेयर कि हमारी आइटरेशन जो है, मतलब कितनी बार हमें अंदर की बॉडी, और इसको हम इंस्ट्रक्शन सेट भी बोल सकते हैं और ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हैं, ये हम कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर फिक्स था कि मुझे इसको 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट करवाना है, तो आई हैव यूज फॉर लूप हेयर। अब अगली तरफ बढ़ते हैं, एडवाइस वाइल लूप भी हम इसी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। और वाइल लूप का जो मेन कंसर्न है दैट इज कि वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द कंडीशन कि वो कौन से आइटरेशन पे आ सकती है। दैट मीन्स उस लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। वो डिसाइड करे होगा रन टाइम में जब वो प्रोग्राम चल रहा होगा। सो इट मे बी ईदर बेस्ड ऑन द यूजर एक्शंस, या कुछ डेटा जो है आप कहीं से पुल कर रहे हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एडिशन का जो हमने ऑपरेशन है, ये हमने एज अ कैलकुलेटर में फिट किया है, एंड अब यूजर के हाथ में है कि वो चाहे इसको 5 बार एडिशन परफॉर्म करना चाहता है, 10 बार, या एक बार करके एग्जिट कर देगा। सो वट वी विल डू, वी विल सिंपली डू वन थिंग। मैं एक यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ दैट इज एक्चुअली चॉइस, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ। राइट। तो मैंने वाइल का, दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। मुझे बस वाइल में यहाँ पे कंडीशन देनी होती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। सो वाइल चॉइस नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि जब तक चॉइस की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। तो फॉर एग्जांपल चॉइस अभी 1 है, तो इफ आई एम जस्ट एवुलेटिंग इट रन टाइम पे, जब एवुलेट होगा ये कोड, तो 1 इज नॉट, राइट, दिस इज 1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो विच इज ट्रू। तो ये कोड चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दैट मीन्स जब चॉइस की वैल्यू जीरो होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। सिंस जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज फॉल्स, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो तब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया दैट चॉइस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक ये लूप चलता रहे। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक चॉइस की वैल्यू जीरो ना हो जाए। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर हम इस कोड को चलाते हैं, और ये कोड हमने यहाँ पे रख दिया इस बॉडी के अंदर। अब क्योंकि लूप की बॉडी है, ये कोड चलता रहेगा बार बार जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। एट द एंड में एक और चीज में इंप्लीमेंट करता हूँ, एंड दैट इज यूजर से एक चॉइस पूछते हैं। वी कैन से एंटर जीरो, और वी कैन से प्रेस जीरो टू एग्जिट, प्रेस जीरो टू एग्जिट, प्रेस एनी अदर की टू कंटिन्यू। ठीक है, दैट्स इट। और एनी अदर की से मेरा मतलब है एनी अदर नंबर। अभी के लिए मैं सारी कीज को अवेलेबल नहीं कर सकता हूँ यूजर के लिए, सिंस जो हम स्टोर करेंगे यूजर का इनपुट वो एक इंटीजर वैल्यू में करेंगे। अगर यूजर कैरेक्टर डालता है तो दैट विल कॉज अ रन टाइम फेलियर, तो वो अभी हम नहीं इसमें कवर कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, चॉइस को मॉडिफाई कर रहा हूँ, जो यूजर इनपुट करेगा उसको मैं चॉइस में स्टोर कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ पर आने के बाद यूजर ने टू इनपुट किया। टू जो है वो चॉइस में आ जाएगा, दैट मीन्स चॉइस की वैल्यू इनिशियली 1 थी, अब 2 हो चुकी है। फिर लूप चलेगा आपके यहाँ तक आने के बाद, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है लूप की। वापस कंट्रोल वाइल के पास जाएगा और कंडीशन चेक होगी। तो इस बारी अगर 2 में मान के चल रहा हूँ, देन 2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो विच इज ऑल्सो ट्रू। दोबारा लूप चलेगा। दैट मीन्स जब तक यूजर जीरो प्रेस नहीं कर देता तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही यूजर जीरो प्रेस कर देगा, चॉइस की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी। तो ये हमारा बेसिकली इसमें इसके पीछे इंटेंशन क्या है, कि हमने यूजर को ऑप्शन दे दिया है कि जीरो यूजर कैन प्रेस टू एग्जिट। सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन इट। जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा
जावा हेलो वर्ल्ड, एंटर द फर्स्ट नंबर, 10, 20, एडिशन आ गया आपके पास। देन एक और कंसोल स्टेटमेंट है दैट इट सेज प्रेस जीरो टू एग्जिट, प्रेस एनी अदर की टू कंटिन्यू और एनी अदर नंबर टू कंटिन्यू। लेट्स सपोज मैंने इसमें 6 एंटर किया है एंड दोबारा से मेरा लूप चल गया, 10, 20, अगेन वही, तो मैंने 6 एंटर दोबारा से किया, 10, 20, मैंने इस बार 8 एंटर किया, 90, 80, तो ये चलता रहेगा जब तक मैं जीरो प्रेस ना कर दूं। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ मैं जीरो प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, दैट्स इट, लूप टर्मिनेटेड। क्योंकि आपकी लूप की कंडीशन जो है वो अब फॉल्स हो चुकी है, इसीलिए आपका लूप यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ वी कैन सी फॉर लूप में क्या था, हमारा जो इंस्ट्रक्शन का सेट था वो एक फिक्स टाइम चल रहा था। और वाइल लूप में वी आर नॉट श्योर, यूजर्स का कुछ नहीं पता वो कब जीरो प्रेस करता है। हो सकता है उसको 10 एडिशन परफॉर्म करने हो, 15 एडिशन परफॉर्म करने हो, सो फॉर दैट वी आर नॉट श्योर। तो जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां पर वी आर नॉट श्योर कि कोई भी लूप कब ब्रेक करना है, उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन पास करनी होती है एंड दैट इज इट। आपकी बॉडी उतने टाइम एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और फुलफिल होने का मतलब है जब तक ये एवेल्युएट होके एक्सप्रेशन जो है ये, जब तक इसका जो भी आप इसको फाइनली सॉल्व करके इसकी वैल्यू ट्रू आती रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। नाउ लेट्स सी डू वाइल लूप। तो बेसिकली डू वाइल लूप में बहुत कॉमन सिंटेक्स है, कुछ नहीं करना होता है डू वाइल लूप में, बस ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आ जाती है डू वाइल के केस में, एंड यहाँ पर आपका डू आ जाता है, दैट्स इट। अब थोड़ा सा अगर मैं इस कोड को एक बार कॉपी करता हूँ और दोनों को क्रॉस कंपेयर करते हैं एक बार, ठीक है, ये मेरा वाइल है, ये मेरा डू वाइल है। अभी के लिए अगर कोई एरर आएगी तो उसको इग्नोर करना, वैसे नहीं आ रही है। राइट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, अब बेट। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, वाइल में आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं, लेट सपोज चॉइस की वैल्यू जीरो कर दूं और फिर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, तो ये कोड एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि चॉइस की वैल्यू जीरो है एंड जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज फॉल्स, तो पहले ही फॉल्स हो गया, बाहर आ जाएगा। बट डू वाइल के केस में आप देख रहे हो कंडीशन बाद में चेक हो रही है, कोड आपका एक बार चल जा रहा है, क्योंकि कंडीशन तो बाद में, सबसे लास्ट में कंडीशन है, कोड तो एक बार रन हो चुका है ना। दैट मीन्स डू वाइल हम तब यूज करते हैं व्हेन वी एक्चुअली वांट कि हमारा कोड एटलीस्ट एक बार चले। उसके बाद वो कितनी देर भी चले, कितना चले, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर इनपुट, बट एटलीस्ट एक बार तो चलना चाहिए, मिनिमम वन टाइम। क्योंकि अब इसमें ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कंडीशन ही इसमें सेकंड नंबर पे होती है, पहले आपकी बॉडी होती है, तो ये बॉडी एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट कर जाती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस जो डू वाइल लूप में है वाइल लूप के अलावा। अदरवाइज बोथ लूप आर सेम और इनकी कंडीशन भी सेम है, इनको हम तब यूज करते हैं जब व्हेन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द आइटरेशन, और वी कैन से द नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी। जब हम श्योर नहीं होते हैं तो हम वाइल या डू वाइल का यूज करते हैं। और डू वाइल का तब हम करते हैं जब श्योर तो हम है नहीं आइटरेशन के लिए, बट वी एक्चुअली वांट कि वो एटलीस्ट एक बार चले, सो फॉर दैट वी यूज डू वाइल लूप। नाउ इन द लूप पार्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट है एंड दैट इज इनफिनाइट लूप्स। तो इनफिनाइट लूप्स वो लूप होते हैं जहां पर कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, वो अनंत समय तक चलते रहते हैं, कभी भी उनका ब्रेक नहीं होता है जब तक आप उस प्रोग्राम को ही टर्मिनेट ना कर दो। तो एज वी कैन सी, अगर मैं फॉर की बात करूं, तो इनफाइनाइट लूप, अगर आप 5 सेकंड के इस वीडियो को पॉज करो और सोचो एक बार कि कोई भी लूप इनफाइनाइट कब हो सकता है, तो वो लूप इनफाइनाइट, कोई भी लूप इनफाइनाइट कब होगा, जब उसकी जो कंडीशन है जहां पर वो चेक करता है कि मुझे बॉडी एग्जीक्यूट करनी है या ब्रेक करना है, अगर वो कंडीशन हमेशा ट्रू रहे। फॉर लूप के केस में अगर हम, दिस इज द इनफाइनाइट लूप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रनिंग, दैट्स इट। इसमें फॉर लूप के केस में इनफाइनाइट क्यों बना, क्योंकि ना यहाँ पे कोई अपडेशन है एंड मेजर पार्ट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो लूप कभी ब्रेक नहीं हो सकता। जस्ट रन इट, जावा हेलो वर्ल्ड जैसे ही मैं लिखूंगा आप देखते रहोगे कंसोल पे रनिंग रनिंग आता रहेगा हमेशा के लिए। फिर मुझे जबरदस्ती इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ेगा, दैट आई कैन डू इट यूजिंग कंट्रोल सी, राइट। नाउ लेट्स सी वाइल में कैसे हो सकता है, एंड वाइल वाला ज्यादा इजी है, बस फॉर में थोड़ा सा सिंटेक्स समझ नहीं आता है, इट डजंट मेक सेंस एट द फर्स्ट टाइम, बट वाइल इज सो इजी। तो वाइल के केस में मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला था, ये लूप अंदर तब तक चलता है जब तक ये जो अंदर कंडीशन है वाइल के अंदर वो ट्रू रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू लिख दूं तो ये लूप चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको चेक करूं, सेम
कंपाइल एंड रन, ये भी चलता रहेगा वाइल के केस में। एंड नाउ आई नीड टू फोर्स शट डाउन द प्रोग्राम इटसेल्फ। एंड डू वाइल का भी सेम सिंटेक्स है, आपको कंडीशन देनी होती है नीचे और सेमीकोलन इज नेसेसरी, और डू आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे डू वाइल का कोई पर्पज नहीं बनता है, क्योंकि डू वाइल का बेसिकली मतलब था कि एटलीस्ट वो लूप एक बार चले, उसके बाद यूजर पे डिपेंड करता है या फिर कंडीशन पे डिपेंड करता है, नॉट यूजर। वो तो पिछले यूज केस का हमारा पास प्रॉपर सिनेरियो था, इसलिए अब ये एक बार मिनिमम चलेगा, लेकिन ये चलता रहेगा क्योंकि कंडीशन में हमेशा ट्रू दे दिया है हमने। तो दीज आर इन्फिनाइट लूप्स, और इनको हम रेयरली यूज करते हैं, जस्ट अ कंसेप्ट जो हमें क्लियर करना है। तो दिस इज इट। तो द नेक्स्ट थिंग इन द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एंड जैसे इनका नाम बता रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली उस टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, या प्रॉपर वी कैन से वो फंक्शनैलिटी या वो हमारे पास फैसिलिटी है जिसके थ्रू या जिसके बेसिस पे हम कोड में कोई भी कंडीशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपके एग्जीक्यूशन को का फ्लो चेंज कर सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन फ्लो बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशंस। And this is the definition which says that it control the flow of execution by executing different code blocks depending on चाहे कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अगेन इसमें भी बूलियन चीजें होती हैं, और उन बूलियन के बेसिस पे ही, दैट बूलियन का मतलब है दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स, उनके बेसिस पे हमारी प्रॉपर सर्टेन कंडीशंस चलती हैं। तो इसके पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। एंड अगेन दीज थिंग्स आर ग्लोबल across each and every programming language. The syntax might differ, but the concept is all same. So first we have if, then we have if else, then we have if else, and then switch case. तो if और if else, और जो आपके पास थर्ड वन इज दैट if else if, ये कंप्लीट एक अपने आप में पूरा एक सिस्टम है। if को हम लाइक सिंगल यूज भी कर सकते हैं, else के साथ भी यूज कर सकते हैं, और एक लैडर भी बना सकते हैं मल्टीपल if else का। तो लेट्स कवर द सिंटेक्स। तो इफ का बेसिक सिंटेक्स है, इफ ब्लॉक होगा जैसे वाइल का था, तो इफ कीवर्ड होगा, उसके अंदर उसकी कंडीशन होगी, एंड देन उसकी बॉडी होगी। सेम फॉर इफ एल्स। तो इफ एल्स में आपके पास इफ होगा, देन उसका बैकअप में एल्स होगा। तो एल्स इज बेसिकली अगर इफ में वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, कोड आपका एल्स वाला चलेगा। एंड इफ एल्स इफ में आपके पास प्रॉपर एक लैडर होती है। तो दिस इज द लैडर, इफ कंडीशन देन एल्स इफ सेकंड कंडीशन, एंड फाइनली फॉल बैक के लिए एल्स है। एंड स्विच केस इज समथिंग एल्स जो हम इफ एल्स के बाद देखेंगे। तो स्विच केस को मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। सो एक बार इफ एल्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं इन कोड इटसेल्फ। एंड फॉर दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं एक बार, गाइस दिस वाज द प्रीवियस प्रोग्राम जहां पर हमने बेसिक एडिशन इंप्लीमेंट किया था। ना उसमें इफ का एक बार यूसेज देखते हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, जैसे ही मैं यूजर से दोनों नंबर एक्सेप्ट कर लूंगा, इनपुट ले लूंगा यूजर से, आफ्टर दैट व्हाट आई विल आस्क, तो आई विल जस्ट क्रिएटिंग अ इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर कंसोल पे दिखाने के लिए। और ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हम लोग यूज करते हैं बार बार, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन है ताकि जब हम कंसोल प्रोग्राम चलाते हैं तो एटलीस्ट यूजर को पता लगे कि अब उसे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यूआई एप्लीकेशंस में, जो जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पर आपके पास बटन हो सकते हैं जहां पर लिखा हो क्लिक मी, अपडेट, सेव, दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट सिंस अभी हम कंसोल एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं, वहां पर कोई भी आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। सो हमें समहाउ यूजर को एक इंस्ट्रक्शन देना होगा दैट व्हाट द यूजर नीड्स टू परफॉर्म नेक्स्ट। So that is the reason we are using actually these things like enter the first number, enter second number. So let's do one thing. We can have two options like press 1 for addition or 2 for subtraction. तो यूजर को पता लग जाएगा मुझे 1 प्रेस करना है या फिर 2 प्रेस करना है बेस्ड ऑन द चॉइसेस, राइट? So now here we need to actually create one more function. तो एक बार उसके लिए भी हम subtraction के लिए भी एक नंबर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सेम फॉर लाइक दिस, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। So int first number, int second number. That's it. Sub subtract. And we can say int result equals to first number minus second number. And we can then return the result. That's it. Now let's use the if statement here. तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा कोड जो है वो किसी कंडीशन के बेसिस पे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो पहले हम इफ को देखते हैं। तो इफ में हमने लिखा इफ
और इसको जो हमारे पास यूजर का इनपुट आया है, इसको यहीं पे स्टोर करना होगा, तो वी कैन से इंट चॉइस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब हम चेक करेंगे इफ चॉइस इक्वल्स 1। दैट मीन्स अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो वो चॉइस में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और अगर हम उसको चेक कर रहे हैं कि चॉइस की वैल्यू क्या 1 है, दैट मीन्स यूजर ने एडिशन ट्राई किया है। मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, दैट इज रिजल्ट। और इनिशियली मैं इसकी वैल्यू 0 असाइन कर रहा हूँ। सो डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद इनिशियलाइजेशन। एंड अगर यूजर ने चॉइस 1 किया, दैट मीन्स यूजर वांट टू परफॉर्म द एडिशन। सो आई विल जस्ट पॉपुलेट द रिजल्ट वेरिएबल विद द एड फंक्शन, और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मुझे पास करने हैं यहाँ पे, दैट्स इट। अगर ये नहीं होता है, यूजर की चॉइस 1 नहीं है, तो अगेन दूसरा इफ ब्लॉक मेरे पास आएगा, और मैं चेक कर रहा हूँ चॉइस इक्वल्स टू 2 अगर है, तो रिजल्ट इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यूजर यूजर को फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहता है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और ये हमने बंद कर दिया। नाउ इसको हमें हटाना है, और इसको हमें बोलना है द रिजल्ट, और वी कैन, हाँ, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। इसको अब एडिशन, क्योंकि हमें नहीं पता एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज, और वी कैन से रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज दिस रिजल्ट। दैट्स इट। और ये वाला हमें अब नहीं चाहिए। तो लेट्स सेव इट और इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो जावा सी hello world dot java and java hello world. It says enter the first number. Okay, 10. After that, 5. Press 1 for addition or 2 for subtraction. So right now I want to perform the subtraction. I just entered 2, और it says result is 5. तो अभी इसने subtraction perform किया है based on the condition। तो इसको बोलते हैं conditional statement। यहाँ पर हुआ क्या, जो flow of execution था, that is initially हर language में क्या होता है, आपका sequential चलता है कोड। एक लाइन, हर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा हमने कंडीशंस डाल दी हैं बीच में, एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो स्विच हो रहा है। इधर इट कैन एग्जीक्यूट दिस लाइन और दिस लाइन, और मे बी बोथ। क्योंकि इफ इफ कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कुछ भी एग्जीक्यूट हो सकता है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हो सकता है कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दोबारा से इसे रन कराऊं, और फर्स्ट नंबर 10 डाला, सेकंड नंबर 20, अब ये बोलता है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड यूजर इनपुट 6, तो कुछ भी नहीं होगा। ये जीरो इसने क्यों दिया है, क्योंकि रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू जीरो थी यहाँ पे, इसीलिए जीरो आया है, क्योंकि रिजल्ट को फिर कोई और वैल्यू मिल नहीं पाई। तो ना आपका इफ का ये वाला ब्लॉक चला, ना इफ का ये वाला ब्लॉक चला। तो दिस इज बेसिकली इफ। इफ को हमेशा एक कंडीशन देनी होती है, एंड फर्दर अगर वो कंडीशन पास होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्स। इफ बिना एल्स के रह सकता है, बट एल्स बिना इफ के नहीं रह सकता। सो बेसिकली एल्स को हम इफ के साथ ही लिखते हैं, और हमेशा इफ के बाद लिखते हैं, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं देनी होती। इट्स एज सिंपल एज दिस। इस कोड का मतलब क्या है, ये दोनों अब पेयर में आ चुके हैं। इस कोड का मतलब ये है कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो आपका ये कोड चलेगा। अदरवाइज चॉइस की कुछ भी वैल्यू हो, फिर ये कोड चलेगा। दैट मीन्स अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमेशा एल्स एग्जीक्यूट होता है। तो नाउ एज वी कैन सी, इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। नाउ लेट्स रन द बाइट कोड। और गाइस, जो मैं इतना इम्फेसिस कर रहा हूँ बार बार दैट वी आर रनिंग द बाइट कोड, इट इज एक्चुअली फॉर, ताकि आपको याद रहे प्रॉपर, और कंसेप्ट भी साथ साथ हमारे शार्पन होते रहे। तो 10 20, और अब ये बोलता है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। मैंने 7 दबाया है 2 की जगह, बट अगेन सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म होगा, क्योंकि उसने चेक किया कि जो चॉइस की वैल्यू है दैट इज 1, तो ये फॉल्स हो गया। चॉइस की वैल्यू 1 नहीं है, चॉइस की वैल्यू 7 है, तो वो कोड सारा का सारा एल्स ब्लॉक में चला गया। जब भी आपके इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो भी एल्स में लिखा हुआ हो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस वाज इफ एल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्स इफ। तो एल्स इफ हमेशा इफ और एल्स के बीच में आता है, और एल्स इफ कितने भी हो सकते हैं। एल्स इफ में क्या होता है, आप कोई दूसरी कंडीशन डालते हो। लेट्स सपोज मैंने ये डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो ऐड होगा, चॉइस की वैल्यू अगर 2 है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और चॉइस की वैल्यू अगर 1 और 2 के अलावा कुछ भी है तो मैं कंसोल पे कुछ प्रिंट करवा दूंगा, और लाइक आई कैन से नो ऑपरेशन एबीआई अवेलेबल, दैट्स इट। तो एल्स इफ में आप कंडीशन डाल सकते हो, एल्स में आप कंडीशन नहीं लिख सकते हो, एल्स हमेशा फॉल बैक होता है। तो इफ में अगर कोई चीज नहीं मिलती है, एल्स इफ में नहीं मिलती है, वो सारा का सारा फिर एल्स में चला जाएगा। बट एल्स इफ में आप कंडीशन डाल सकते हो।
फर्दर आप मल्टीपल एल्स इफ बना सकते हो, तो लेट्स सपोज एल्स इफ चॉइस इक्वल्स इक्वल्स थ्री, तो मैंने थ्री के लिए भी केस बना दिया, एल्स इफ चॉइस इक्वल्स इक्वल्स फोर। इस तरह से मैंने मल्टीपल केसेस बना दिया एल्स इफ में। तो एल्स इफ की नीड क्या है? जब आपको और एक्स्ट्रा कंडीशन डालनी हो, बट इसकी इसके लिए कंस्ट्रेंट क्या है कि इफ होना जरूरी है। बिना इफ के अगर मैं इसको हटा दूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। आप डायरेक्टली एल्स इफ नहीं लिख सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आपके पास एल्स हो इसमें, एल्स इफ में। हो सकता है आप इस एल्स को यहाँ से रिमूव कर दो, ये भी काम करेगा। दैट मीन्स चॉइस की वैल्यू अगर ये वन है तो ये चले, टू है तो ये वाला कोड चले, थ्री है तो जो इस बॉडी में होगा वो चलेगा, फोर है तो जो इस बॉडी में होगा ये चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। और अगर आपने एल्स रख दिया तो अगर कुछ भी नहीं मैच करता है तो लास्ट में आपका ये कोड चलेगा। तो दिस वाज द यूसेज और एप्लीकेशन ऑफ इफ एल्स ब्लॉक और कंप्लीट लेडर जो होता है इफ एल्स का। और ये लेडर बहुत ज्यादा पहुंच सकता है। नाउ इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इज स्विच केस। तो स्विच केस का जो सिंटेक्स है, इसी फंक्शनैलिटी को हम स्विच केस के थ्रू भी एक बार करते हैं। तो यहां से हटा देते हैं इसको, राइट, इस सेक्शन से। और इफ एल्स और स्विच केस बहुत सिमिलर मिलेंगे आपको, बट उनमें डिफरेंसेस क्या है वो मैं बता दूंगा, और कब किसको यूज करना है वो हम इसके बाद देखेंगे। तो स्विच केस का बेसिक सिंटेक्स जो है दैट इज, हमें स्विच लिखना है और उसकी देन बॉडी आएगी, और यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा। जो डिफरेंस है स्विच केस में वो सिर्फ इतना है, इफ के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ चॉइस की हम बात कर रहे थे, चॉइस इज लेस देन वन, ये कंडीशन चल सकती है इफ ब्लॉक के अंदर, राइट। कि हम यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं इफ एल्स में, इफ और एल्स इफ में, एल्स में साथ में भी। बट स्विच केस में जो कंपैरिजन होता है हमेशा वो इक्वालिटी के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ यहाँ पे चॉइस लिखना है, मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है चॉइस इक्वल्स इक्वल्स टू वन, ये गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे केसेस चलेंगे। तो मैंने बोला चॉइस, अब मैं क्या करूंगा, इसकी बॉडी में केसेस बनाऊंगा। तो मैंने लिखा केस वन, और यहाँ पे मैंने बोला रिजल्ट इक्वल टू, जो मुझे कोड चलाना है अपना, बस दिस इज द बॉडी, एंड देन आई विल हैव द ब्रेक स्टेटमेंट, देन केस टू, एंड रिजल्ट इक्वल टू सब्सट्रैक्ट, और यहाँ पे मेरा ब्रेक स्टेटमेंट, एंड लास्ट में मेरा होगा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट आपके एल्स की तरह है, कोई भी केस मैच नहीं करता है डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो इन डिफॉल्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट नो ऑपरेशन बेस्ड ऑन द चॉइस। ठीक है, अब मैं इसको आगे परफॉर्म करके देखता हूँ, सॉरी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो कंपाइलेशन एंड रन, 10 20। अब वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन। तो होता क्या है, अगर मैं वन प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वन प्रेस कर रहा हूँ नाउ, चॉइस इज एक्चुअली, चॉइस इक्वल्स टू वन, चॉइस की वैल्यू वन हो चुकी है। अब क्योंकि चॉइस की वैल्यू वन है तो स्विच के पास एक वेरिएबल आता है जिसके करस्पॉन्डिंग वो केसेस को चेक करता है, और ये चेक करता है सिर्फ आपकी इक्वालिटी के लिए। दैट मीन्स आपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया है वो कौन से केस से इक्वल है, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है। तो चॉइस की वैल्यू वन है तो ये मैच होता है आपका केस वन से, इसीलिए एडिशन परफॉर्म होगा, और फिर ये कोड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो मैं वन प्रेस करता हूँ, एंड इट सेज द ऑपरेशन, रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज 30, क्योंकि 20 + 10 30 होता है, राइट। अब इसमें ब्रेक इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेक को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरे पास जस्ट जो केस मैच होता है उसके जस्ट आगे वाला केस चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर चॉइस की वैल्यू वन डालने पे केस वन मैच हुआ तो ऐड तो चलेगा चलेगा, साथ में सब्ट्रैक्ट भी चलेगा, और फिर ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं ब्रेक हटा दूं तो अब डिफॉल्ट केस भी चलेगा। तो मैचिंग केस के बाद आपके ऑपरेशन है वो चलते जाते हैं, जितने केसेस हैं वो चलते जाते हैं, अनटिल अनलेस आप वहां पे ब्रेक ना लगाओ। तो ब्रेक इज इंपॉर्टेंट इन स्विच केस, इधर वी कैन हैव ब्रेक और वी कैन हैव रिटर्न, दैट्स इट। अब ये ब्रेक की तरह ही काम करता है। दैट मीन जैसे ही कोई केस मैच हुआ उसका कोड एग्जीक्यूट हुआ, एंड वी आर जस्ट ब्रेकिंग फ्रॉम द केस इटसेल्फ। अगर कुछ भी मैच नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर चॉइस की वैल्यू 8 होती तो मेरा डिफॉल्ट वाला कोड चलता, क्योंकि किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स लेडर और इफ एल्स इज और स्विच केस इज कि स्विच केस में आपके पास सिर्फ इक्वालिटी के अगेंस्ट आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कोई वैल्यू किसी केस के इक्वल है या नहीं। रादर देन इफ एल्स में आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई कितने भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो।
सेकेंड थिंग, स्विच केस आपका ज्यादा एफिशिएंट होता है रादर देन इफ एल्स। तो इट टोटली डिपेंड्स कि जहां पर आपको पता है प्रॉपर आपके पास कंडीशंस कितनी है, आपको पता है कि मेरे प्रॉपर इतने ही केसेस हैं, उस जगहों पे हमें स्विच केस यूज करना है। किसी जगह पे अगर हम श्योर नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन क्या है, किस किस के अगेंस्ट हमें चेक करना है, सो देयर विल बी यूजिंग इफ एल्स। So these were the conditional statement. Now, so now guys, we will be actually looking into two of the keyword which are available in Java for loops, और ये again loops का concept है तो ये हर जगह available है, and those are continue and break। ये आपने अभी अभी स्विच केस में भी देखा था। तो ये दो हमारे पास कीवर्ड है। इसका एग्जांपल फॉर लूप के थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कंटिन्यू कीवर्ड की। सो मैं एक आइटरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। तो मेरा ये लूप 10 बार चलेगा, 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10th टाइम आते आते ये लूप खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, आई एम मिसिंग सेमीकोलन हियर, राइट। सो मैं कंसोल यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एंड इट सेज एंटर द लूप फॉर आइटरेशन। और यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, दैट, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से आइटरेशन के लिए हमारे लूप लूप बॉडी में ये एंटर हुआ है, राइट। एंड इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन अगेन, एग्जिटिंग द लूप बॉडी फॉर आइटरेशन, एंड देन सेम जो भी आपके पास आइटरेशन है। अब इस बीच में आई विल बी यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू के लिए मुझे इफ कंडीशन यूज करनी है। सो आई एम सेइंग इफ आई इक्वल्स 5, देन कंटिन्यू, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारे पास बहुत बेसिक प्रोग्राम है टू अंडरस्टैंड द कंटिन्यू कीवर्ड। तो मैं कंटिन्यू कीवर्ड का एक बार बता देता हूँ, कंटिन्यू कीवर्ड करता क्या है। आप जहां पर भी कंटिन्यू लिखते हो ना, उसके आगे वाला कोड आपका स्किप हो जाता है, और फर्दर जो कंट्रोल है वो लूप की अगली आइटरेशन पे पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बाहर कंटिन्यू लिखता हूँ, तो मेरा ये लाइन कभी भी नहीं चलेगी। मेरा जब भी लूप में एंट्री होगी, कंटिन्यू आएगा, फिर ये दोबारा लूप पे चले जाएगा। दैट मीन्स एक आइटरेशन आगे चला जाएगा, और जब भी आइटरेशन खत्म हो जाएगी तो आपका लूप बाहर आ जाएगा। ये लाइन कभी भी कॉल नहीं होगी, इसीलिए ये बोल रहा है अनरीचेबल कोड, राइट, क्योंकि मैंने कंटिन्यू बाहर लिख दिया है। अभी कंडीशनल लिखने का बेनिफिट क्या है, इसको देखते हैं, और इससे क्या होगा वो भी देखते हैं। जावा सी hello world dot java, using the compiler, then using the launcher to run the code. And as you can see, entered the loop for iteration 0, exiting the loop for iteration 0. Entered for iteration 1, exiting for iteration 1. Entered for 2, exiting for 2. Entered for 3, exiting for 3. Entered for 4, exiting for 4. Entered for 5, and entered for 6. अब प्रॉब्लम क्या हुई, इसने 5th आइटरेशन के लिए एग्जिट नहीं किया। दैट मीन्स, और एग्जिट ना करने का मतलब, ये आपका प्रिंट लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, यहां तक कंपाइलर पहुंचा ही नहीं। जो आपके पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाला था, एग्जीक्यूशन इंजन, वो यहाँ पहुंचा ही नहीं। रीजन फॉर दैट, क्योंकि उसे रास्ते में एक स्टेटमेंट मिल गई, दैट इफ आई इक्वल्स टू 5, और 5th आइटरेशन के लिए आई की वैल्यू 5 थी, तो ये कंडीशन ट्रू हुई है आपकी। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू कीवर्ड ने अपना काम करा और अगले जितना भी कोड है उसको स्किप कर दिया। तो कंटिन्यू कीवर्ड काम आता है लूप के अंदर जब आप आगे वाले लाइंस को स्किप करना चाहते हो फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो दैट इज द रीजन कि 5th आइटरेशन के लिए एग्जिट वाला कोड आया ही नहीं, सीधा 6th के लिए आया एग्जिट एंटर्ड वाला, देन एग्जिट, और फिर फर्दर आपको हर हर उसके लिए एग्जिट एंटर मिलेगा। नाउ दिस वाज द यूसेज ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक कीवर्ड। और ब्रेक, जैसे हमने देखा था, इट इज ऑल्सो इक्वल टू रिटर्न कीवर्ड। तो जैसे फंक्शन में रिटर्न करते हैं, वैसे ही लूप में भी रिटर्न करते हैं। रिटर्न का मतलब और ब्रेक का मतलब सिमिलर है। आप किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को तोड़ के वहां से बाहर निकल जा रहे हो। तो फंक्शंस में अगर मैं बीच में ब्रेक लगाता हूँ या रिटर्न लगाता हूँ, फंक्शंस डजंट एक्सेप्ट ब्रेक, तो वहां पे रिटर्न यूज होता है। तो अगर मैं बीच में रिटर्न करता हूँ, तो उसके आगे जो भी लिखा होगा वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ लूप्स। तो ब्रेक का एक बार यूसेज देखते हैं। जस्ट सेव इट, और ओके, दैट इज क्लियर। कंपाइल एंड रन। नाउ वी कैन सी कि हमारे पास 0 के लिए एंटर हुआ, 0 के लिए एग्जिट, 1 एंटर, 1 एग्जिट, 2 एंटर, 2 एग्जिट, 3 एंटर, 3 एग्जिट, 4th आइटरेशन के लिए एंटर, 4th के लिए एग्जिट। 5th आइटरेशन इसने एंटर तो किया था, बट एग्जिट नहीं कर पाया, क्योंकि हमने क्रॉस चेक किया था दैट आइटरेशन की जो वैल्यू है, दैट मीन जो आइटरेटर है आई,
अगर उसकी वैल्यू 5 है, विच इज एक्चुअली 5 फॉर दिस आइटरेशन, देन ब्रेक दिस। और ब्रेक का मतलब होता है रिटर्न। तो लूप से बाहर निकल जाता है, पूरा कंट्रोल आपका नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक और स्टेटमेंट, लूप टर्मिनेटेड, और वी कैन से टर्मिनेट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लाइक हो चुका है, बट इसको ऐसे बोलते हैं आउटसाइड द लूप। तो अब मैं क्रॉस चेक करता हूँ, कंपाइल, रन। तो एज वी कैन सी, पांचवें आइटेशन में एंटर करने के बाद वो लूप के बाहर आ गया, क्योंकि जैसे ही आई 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 की वैल्यू 5 आई, उसने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक का मतलब होता है लूप खत्म करना, वहां से दोबारा आपके पास लूप पे कंट्रोल नहीं जाता है। तो दीज आर द यूसेज ऑफ ब्रेक एंड रिटर्न कीवर्ड, सॉरी कंटिन्यू कीवर्ड। और कंटिन्यू का ज्यादा यूसेज नहीं है, बट ब्रेक आपको बहुत यूज करना पड़ सकता है वेल यू विल बी डेवलपिंग एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स। तो ब्रेक का बहुत ज्यादा यूसेज है। तो दिस वाज द यूसेज। So that's a wrap for today. If you find this helpful, please don't forget to like, share, and subscribe, and comment down your queries and doubts. Keep coding, keep growing with Voice of Code.